Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet, and we are in our Wednesday session. And the topic for today is freedom from rebirth. My network is showing a bit unstable, so just hang on. It will become clear soon. If my audio is not clear. Yeah. Yes. So the topic is freedom from rebirth. So when you hear this topic, what comes to your mind? What comes to your mind? 84 लाख योनियां, आत्मा शरीर धारण करे जा रही है, ये सब हमने सुना हुआ है। हाँ, तो कहाँ पे हो आप और क्या थॉट प्रोसेस है, क्या बिलीफ सिस्टम है? वी आर गोइंग टू चैलेंज ऑल दैट एंड लेट अस गेट द सीक्रेट ऑफ द ट्रुथ, द रियल ट्रुथ about life and the secret of all these concepts that are flooding our mind. Yes. So who would like to share? आपके थॉट प्रोसेस में क्या है? रीबर्थ क्या है एंड रीबर्थ क्यों होता है and how possibly you can get freedom from rebirth. So what is your thought process? Anybody? कोई कंसेप्ट नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बहुत कुछ सुना हुआ है. How many of you want this to be your last birth? How many of you want this to be your last birth? ये भी एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है. हाँ? So we are going to challenge that also. See, if a player like Sachin Tendulkar, what he would like to do, sit in the dressing room or come in the playground and play the matches. So as a star batsman or a star performer, you would always like to play the game, right? And the soul will always play the game with the body. So soul without the body is like a non-performing asset, NPA. अगर सोल के पास बॉडी नहीं है तो वो NPA है. इज वेटिंग इन द वेटिंग रूम में है, वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, राइट? सो a cricketer would love to come out and play and win the championship trophy, right? Like we had the Indian team winning that, and Rohit Sharma was absolutely delighted when he got the cup. So a player has to play the game and get the trophy. So that is what the game is all about. तो रीबर्थ से भागना नहीं है. तो फिर हम इतना ज्यादा रीबर्थ के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि रीबर्थ नहीं चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ हमको चाहिए, बर्थ एंड डेथ साइकिल से छुटकारा चाहिए, क्यों चाहिए? So this is what we are going to look into today, right? So let us straight away dwell into, I have given you a lot of thoughts, so I'll straight away dive into the secret of what is rebirth. So first of all, let us understand, हम सबने सुना हुआ है आत्मा कौन है? आत्मा का क्या है? अजर है, अमर है, अविनाशी है. तो द सोल इज नेवर बॉर्न एंड नेवर डाइज. सोल इज, राइट? तो आत्मा कभी मरती नहीं है, ना कभी पैदा होती है. तो ये जब बढ़ती नहीं हुआ तो पुनर्जन्म किसकी बात कर रहे हैं? जब जन्म ही नहीं हुआ, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग ऑफ द बॉडी एंड द माइंड कॉम्बिनेशन, तो जिसको हम BMI बोलते हैं, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स. ये जो हमारा, जिसको हम देखते हैं मिरर में, शरीर. तो दिस बॉडी accompanied by the mind and the intellect, this gives us a sense of individuality. This body is getting rebirth, right? तो शरीर मरता है और शरीर दोबारा, आत्मा दोबारा शरीर लेती है. तो we can say in one way that the body is getting born and body is getting the death. तो बर्थ एंड डेथ कौन से लेवल पे है? बॉडी के लेवल पे है, राइट? एंड द सोल moves on from one body to the other with the residual mind, which means mind में जो भी आपके चित्त में जो भी इम्प्रिंट्स हैं, वो संस्कार को लेके और कार्मिक बॉन्डेजेस को लेके दूसरे शरीर में जाती है और अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है. तो आत्मा शरीर पे शरीर लिए जा रही है. क्यों ले के जा रही है? सो दैट द ऑनवर्ड इवोल्यूशन ऑफ द सोल इज हैपनिंग टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन. So this is what we have learned and this is what is the process, correct? So anybody who is not aligned with it can
have your, you can share your thoughts on this. And meanwhile, let me welcome प्रभजोत सिंह जी, वेलकम। आप शायद पहली बार आ रहे हैं, तो अगर कुछ बताना चाहेंगे या अपने व्यूज देना चाहेंगे तो फील फ्री टू डू दैट। यस, so would you like to share something today? Sir, I have a question. Yeah, please go ahead. Sir, अगर हम हिप्नोटाइज यूज करें, बॉडी में से पेन कोई भी है रिमूव कर देते हैं, किसी भी डिजीज का, एनी डिजीज, बट क्या वो उसका पेन हमें फील नहीं होगा, बट क्या वो डिजीज क्योर होगी? So you touched a topic which is not immediately relevant, but yes, I will answer that to some extent. देखिए, जब आप किसी सर्जरी में जाते हैं, आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल या टोटल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द पेन, करेक्ट? तो आपकी सर्जरी हो गई, मान लीजिए दांत की सर्जरी हुई, रिसेंटली आई हैड ए डेंटल सर्जरी, सो आई रिमेंबर दैट, राइट? तो लोकल एनेस्थीसिया दिया गया और व्हाट एवर हैज टू बी डन, द सर्जरी वाज डन। तो पेन को फील नहीं किया, तो क्या किया, पेन को रिमूव कर दिया गया। आई डिड नॉट फील एनी पेन, बट द एक्चुअल ऑपरेशन तो हुआ ना। बाद में पेन किलर्स दिए ताकि पेन जब वापस एनेस्थीसिया का असर कम हो जाए तो पेन ना हो, करेक्ट? सो एनेस्थीसिया देने से ट्रीटमेंट नहीं हो जाती, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसका। तो हिप्नोसिस से नहीं होगा, हिप्नोथेरेपी से होगा। हिप्नोसिस में जाके आपको वो थेरेपी करनी पड़ेगी, सबकॉन्शियस माइंड में जो इम्प्रिंट्स हैं उनको निकालना पड़ेगा। एंड देयर आर वेरियस वेज हाउ वी डू इट। वी डू इट विद स्पिरिचुअल हीलिंग, कार्मिक हीलिंग, we do that with hypnotherapy, we do that with NLP, and we do that with graphology. There are many techniques by which you can remove the imprints of the subconscious mind. So it's a different topic altogether. But what you said is that anesthesia जो दे रहे हैं या hypnosis जो कर रहे हैं, वो सिर्फ पेन को फील ना करें इसलिए दिया जाए, उसके बाद थेरेपी तो करनी पड़ेगी। तो प्रभु जी, did I answer your question? Yes, sir. Sir, I tell you something. Your voice is not clear. Always इंटरनेट थोड़ा सा interrupting. अनस्टेबल आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप दोबारा से आराम से सुन लीजिएगा। बट राइट नाउ ऑल आई वाज सेइंग इज, एनेस्थीसिया देने से जैसे ट्रीटमेंट नहीं होता, ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, वैसे ही हिप्नोसिस से ट्रीटमेंट नहीं होगी, हिप्नोथेरेपी करनी पड़ेगी। देन द पेन विल गो और द डिजीज विल बी रिवर्स्ड, करेक्ट? ओके, लेट्स एक्नॉलेज प्रभु जी, वेरी गुड क्वेश्चन। Yes, but my question remains. What I was asking is, what are your concepts of birth and rebirth, birth and death? तो अगर सब लोग एग्री करते हैं कि शरीर जन्म लेता है और शरीर की मृत्यु होती है, then we are at the right page. आत्मा का कभी जन्म या मरण नहीं होता। आत्मा is, the soul is just moving on, and we are the soul, we are not the body. तो हमारी कभी मृत्यु या birth and death हमारा नहीं होता as the soul level, but we are deeply, you can say, conditioned. सोसाइटी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है कि वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स लाइक ए बॉडी। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में हम जी रहे हैं, दैट्स व्हाई द बेसिक फियर ऑफ डेथ इज इनहेरेंट इन ऑल ऑफ अस। तो वी आर स्केयर्ड ऑफ डेथ एंड वी बिलीव इन बर्थ एंड रीबर्थ, क्योंकि हमको मालूम है शरीर मरता है, तो अगर मैं शरीर हूं तो मैं मर रहा हूं और मैं दोबारा जन्म ले रहा हूं। So the concept of birth and rebirth happens only at the level of body and mind. Is that okay with everybody? Correct? Yes. And now we are talking of freedom from rebirth. Yes. So you should understand, when we talk of freedom from rebirth, actually we are talking rebirth हो क्यों रहा है, पहले तो ये बताइए। जैसे हमने कहा, आत्मा शरीर पे शरीर लिए जा रही है, क्यों लेके जा रही है? एक पर्पस होगा ना, अंधाधुंध तो नहीं हो रहा, पर्पसलेस तो नहीं हो रहा। देयर इज अ रीजन। व्हाई इज दैट रीजन? व्हाट इज दैट रीजन? कार्मिक बॉन्डेजेस, यू कैन से कर्मा। सर, हाँ सर, पिछले जन्म के कोई काम अधूरे रह गए, या जिस फैमिली में हमने जन्म लिया है उसका कोई एनीथिंग, तो कुछ उसका इम्प्रिंट रह गया बाकी, है ना, कुछ कोई बदला वापस रह गया, जैसे पिक्चरों में देखा है, बदला लेने के लिए दोबारा जन्म लेके आ गए करण अर्जुन। हाँ, तो कुछ तो है पेंडिंग, जो कार्मिक अकाउंट बोल देते हैं हम उसको, हम बदले की बात नहीं करते वरना सब मूवी में घुस जाएंगे।
तो कुछ कार्मिक अकाउंट हैं पेंडिंग, उनको पूरा करना है। तो आउटसाइड वर्ल्ड में देयर आर सम कार्मिक अकाउंट्स व्हिच यू हैव इनिशिएटेड इन योर प्रीवियस बर्थ्स, करेक्ट, और वो पूरे करने के लिए आपको एक और मौका दिया जा रहा है, बिकॉज मौका आपको बहुत मिलेगा। हाँ, जैसे पाकिस्तान को मिलता है, बहुत सारे मौके मिलते हैं वर्ल्ड कप जीतने के, राइट, वैसे ही आपको आत्मा को भी बहुत सारे मौके मिलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेज पे जाने के लिए। तो आपको लाइफ बहुत मिलेगी, जितनी चाहिए उतनी लाइफ मिलेगी आपको, बट उस लाइफ में आप कर क्या रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स, ऑन योर साधना। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है जी। बट राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं बाहर की दुनिया में। तो बाहर की दुनिया में क्या क्या होता है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है। उन परिस्थितियों को फेस करते हुए हम ऐसे कर्म करें कि हम कार्मिक अकाउंट्स को पूरा कर लें सबके साथ। एंड पूरा होने का मतलब ये है कि वो इंसान हमारे लाइफ में हो या ना हो, वी आर एक्सचेंजिंग एन एनर्जी एक्सचेंज ऑफ लव, पीस एंड जॉय विद दैट सोल। तब वो अकाउंट पूरा हुआ मानते हैं। क्यों? क्योंकि लव, पीस एंड जॉय इज अवर बेसिक इनेट नेचर। सत्य चित आनंद हमारा बेसिक नेचर है डिवाइन का, और लव, पीस एंड जॉय हमको सारे सोल्स के साथ रिलेशनशिप बनानी है। देन वी आर फ्री फ्रॉम द आउटसाइड karmic accounts. There is one karmic account also, there is one karma also going on inside your चित्त। आपके चित्त में जो भी इम्प्रिंट्स हैं, यस, तो तामसिक हैं, राजसिक हैं या सात्विक हैं, यही इम्प्रिंट्स होंगे, क्योंकि माया या मैट्रिक्स इन्हीं तीनों गुणों से बना हुआ है। तो आपके चित्त में इनके इम्प्रिंट्स हैं, इन इम्प्रिंट्स को खाली करना है। खाली करना है मीन्स यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम दीस इम्प्रिंट्स। इनको अपनी साधना से आपको डोरमेंट करना है और बाद में इसको पूरा जलाना है। जब आपका चित्त इन विकारों से मुक्त हो जाएगा, तब आप अंदर से तैयार हो जाएंगे मोक्ष के लिए, विच मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। एंड बाहर के अकाउंट्स पूरे हो जाएंगे, देन यू विल बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम योर बॉडी एंड माइंड। बॉडी से तो आप फ्री होते जा रहे हैं, लेकिन माइंड से फ्री नहीं हो पा रहे हैं, राइट। सो दीज टू लेवल्स ऑफ फ्रीडम यू नीड, एक चित्त में और एक बाहर के कार्मिक अकाउंट्स में। देन यू विल बी आइडियली in a situation where you need not come back from birth and death. This is called moksha. That means you are free from the karmic debts, bondages, attachments. You are free from all the suffering and miseries because चित्त पूरा खाली हो चुका है, तो अब कोई suffering और misery नहीं है, and you are in a blissful state. This is called a जीवन मुक्ता. जीवन मुक्ता is the term that we use, self-actualized जीवन मुक्ता, right? तो जीवन मुक्त कौन है? जिसका चित्त अंदर से पूरा का पूरा शांत हो चुका है और पूरा खाली हो चुका है। तो वो निर्विकल्प समाधि, या फिर आप बोल सकते हैं सब निर्बीज समाधि के लिए क्वालिफाई करता है। बट अगर वो सिर्फ डोरमेंट हुए हैं तो सभी समाधि है, ये सहज समाधि जो है उसके स्टेट को बोलते हैं। सहज समाधि में यू विल कंटिन्यू टू लिव इन दिस बॉडी टिल द अकाउंट्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड आर कंप्लीटेड। तो सिचुएशंस आएंगी लाइफ में, लोग आएंगे लाइफ में, आपको फ्रेश कार्मिक बॉन्ड्स नहीं बनाने हैं, अपने सात्विक कर्मों से अपने कार्मिक अकाउंट्स को कंप्लीट करना है। So these two aspects of karma will give you the freedom. Is that okay? So far, am I clear? Okay. Or any understanding is required? Please ask any question if it is not clear. Sir, हाँ जी. sir, I have a question. Yes. You said आत्मा अमर है, ये कभी खत्म नहीं होती। बट जो अगर ये इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या ये पिछले जन्म की आत्माएं हैं जो दोबारा रीबर्थ ले रही हैं, जो भटकती आत्माएं हैं फिर? हाँ, जितना आप मान के चलिए, जितने पैसेंजर्स ट्रेन में होते हैं उससे कहीं ज्यादा 10 गुना ज्यादा तो बाहर वेट कर रहे होते हैं ना, जिनको ट्रैवल करने के लिए मौका नहीं मिला। तो वेटिंग रूम में बहुत सारे रखे हुए हैं। जब ट्रेन आएगी तब पैसेंजर्स चढ़ेंगे ना उसमें, तभी तो कयास होता है रेलवे स्टेशन में। हाँ, तो जो रिजर्वेशन स्टेशन है जहाँ पे सोल्स वेट कर रहे हैं, वहां भी मारामारी चल रही है। जो क्वालिफाई करते हैं, जो डिजर्विंग है, उनको ट्रेन मिल जाती है, दे गेट ए बॉडी, अदर्स आर वेटिंग। And at the soul level, there is no time, there is no space, so you can wait for hundreds and hundreds of years, especially if you do something stupid to get rid of your body, like suicide attempt. आप सुसाइड करते हो तो आपको कनेक्शन ट्रेन नहीं मिलने वाली, बीच स्टेशन में पहुंचे नहीं, आप स्टेशन से पहले ही कूद गए नीचे, समझ गए? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो अगर ट्रेन में जा रहे हो, बिना स्टेशन पे रुके, स्टेशन पे उतरने की जगह आप ट्रेन में बीच में से ही कूद गए,
तो आपको दूसरी ट्रेन नहीं मिलेगी ना. फर्स्ट यू हैव टू गेट टू ए स्टेशन, देन वेट इन द वेटिंग रूम, देन द ट्रेन विल कम, देन यू विल बोर्ड द ट्रेन. तो अगर सुसाइड करने का ज्यादा ही शौक है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यू विल रिमेन एन एनपीए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज यू हैव ब्रोकन द बेसिक नेचर ऑफ इवोल्यूशन. नेचुरल लॉ जो है इवोल्यूशन का वो आपने तोड़ दिया है. तो बेस्ट है जो लाइफ मिली है उसकी रेस्पेक्ट करो, सही कर्म करो और सही तरीके से शरीर को छोड़ो ताकि अगला शरीर आसानी से मिल सके. So that you are not an NPA but you are a performing asset with the body. Then a player will not be in the dressing room, he will be on the playground playing the game, making centuries, winning championship trophies. That is what is the purpose. हमारा पर्पस बर्थ एंड डेथ से फ्रीडम नहीं है. हमारा पर्पस है लाइफ को पूरी तरह जीना, राइट. तो चित्त को पूरा साफ करना है, सही आपकी साधना करनी है, बाहर के कार्मिक अकाउंट्स को पूरा करना है, एक जीवन मुक्त की जिंदगी बितानी है. That is the purpose of your life, right? So Prabhu ji, welcome. Good question. Let's acknowledge. Yes. Anybody else who wants to share? And meanwhile, I hope I'm audible, right? And network अभी भी मेरा थोड़ा unstable दिखा रहा है, but I hope I am audible. Yes, Rajiv, you have raised your hand? No. Oh, that's fine. Let me welcome people who have just joined in. So Devesh, Rajiv, Jyoti ji, and yes, and Anuruj ji. You can switch on your videos, and if you want to share something, please go ahead. Welcome, Amit. Anything you want to share, please go ahead. Yeah. तो जो मैंने अभी तक बोला कितने लोगों को क्लियर हुआ? कोई डाउट्स? एनी डिस्कशन दैट यू नीड? एनीथिंग नॉट शशि क्लियर? जी जरा सा ब्रीफ करके प्लीज बता सकते हैं, मेरा मिस हो गया. मिस जरा हो गया सा तो 2 वर्ड्स में जो कैन यू टेल की 2 वर्ड्स में नहीं बता सकता बिकॉज आई वोंट नो हाउ टू रिकैप राइट नाउ. सो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग लेटर, डोंट वरी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग इन द यूट्यूब, है ना. तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा. ओके राइट नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज ओके Amit ji, I know there's a breaking sound because the network is unstable. No? I can't do much about it. So those who are not able to catch for the full explanation will have to watch the recording again. Little homework, that's fine. Yes, so Jyoti ji, what we were discussing is freedom from rebirth topic है. तो rebirth किसका हो रहा है? अभी तक हमने ये डिस्कस किया है, ये शरीर का हो रहा है, आत्मा का नहीं हो रहा है. नंबर 1. नंबर 2, रीबर्थ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं जो बाहर की दुनिया में लोगों के साथ पेंडिंग हैं. इसके लिए आपने दोबारा से जन्म लिया है एक दूसरे शरीर में, राइट. और आपको अपने चित्त को साफ करना है, उसके लिए आपको अपनी साधना करनी है. तो इन 2 वजह से आप आत्मा जो है वो शरीर पे शरीर धारण किए जा रहे हैं, क्योंकि हर लाइफ टाइम में आपको एक मौका मिल रहा है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने का. अभी तक हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है जी. या अब हम आगे बढ़ रहे थैंक यू हैं. वेरी मच. थैंक यू. तो नाउ वी आर गोइंग अहेड एंड सीइंग व्हाई डू यू रियली वांट रीबर्थ. उसके लिए आपको ये देखना होगा व्हाट इज योर प्रोग्रेस इन दिस लाइफ टाइम. इस लाइफ टाइम में आप कहाँ हैं? अपनी लाइफस्टाइल को या अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे आपकी लाइफ में सफरिंग और मिजरीज हैं, आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्टेशन का लेवल है, आपके लाइफ में फुलफिलमेंट एंड पीस की क्या लेवल है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं. दैट विल गिव यू सम आइडिया अबाउट वेयर यू आर मूविंग इन दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ योर सोल जर्नी, करेक्ट. That will give you an idea about where you are standing in the process of rebirth. क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि ये मेरा लास्ट बर्थ होना चाहिए. क्या हो जाएगा उसके बाद? अगर लास्ट बर्थ है ये और आपको मोक्ष मिल गया, दोबारा शरीर नहीं मिलेगा, आप कॉन्शियसनेस में पार हो गए, तो क्या होगा फिर? आप दोबारा शरीर नहीं लोगे, दैट मीन्स यू विल नॉट एंजॉय लाइफ. आपको दोबारा लाइफ नहीं मिलेगी. आप विदाउट लाइफ वेट करेंगे, देखेंगे दुनिया में क्या चल रहा है. Is that good enough for you? Because I don't know what is going to happen after you cross this materialistic world. इस यूनिवर्स को पार करके आप जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे? I have some idea. I will share that with you. But then I haven't been there, so I can't share anything from there, right?
राइट नाउ आई कैन से दैट यू आर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, आप इस लाइफ में हैं, इस लाइफ को बेहतरीन जिए एंड इसको पूरी फुलफिलमेंट एंड पीस के साथ जिए एंड लव पीस एंड जॉय की एनर्जी सब लोगों को बांटें. दैट विल टेक यू टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. लाइफ का एक्सपीरियंस सबसे हाईएस्ट हो, ये आपका पहला एफर्ट होना चाहिए. करेक्ट. और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहले तो ये बताइए, ये कार्मिक इंसान को बोलते हैं ना सारे योनियों, हाँ 84 लाख योनियों की तो बात ही नहीं करी हमने. तो 84 लाख योनियों से पार होके आप अगर ह्यूमन लाइफ में आए हैं, तो क्या कर्मा सिर्फ हमारे लिए ही है? हमको ही यहाँ से मोक्ष मिलना है, बाकी सब खुश हैं. हाँ, चींटी, पक्षी, मछलियाँ, जानवर, इनको मोक्ष की जरूरत नहीं है, ये खुश हैं, ये अपने हिसाब से चल रहे हैं. इनके लिए कोई कार्मिक बॉन्डेजेस नहीं है, इनके लिए कोई रिबर्थ नहीं है. ये एक योनि से दूसरी योनि में बड़ी आसानी से चले जाते हैं. हम फंसे हुए हैं यहाँ पे. क्यों फंसे हुए हैं? अगर मुक्ति चाहिए तो बंधन होगा ना, तभी तो मोक्ष चाहिए. वी से वी वांट फ्रीडम, दैट मींस यू आर इन बॉन्डेज, राइट? ये बॉन्डेज क्यों है? और ह्यूमन बीइंग्स ही क्यों कौन बॉन्डेज में? बिल्ली, कुत्ते, गाय, ये सब बॉन्डेज में क्यों नहीं है? बॉन्डेज में है या नहीं है? क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग? क्या है? डू यू थिंक द लोअर बीइंग्स, आई वोंट से लोअर बीइंग्स, अदर लिविंग बीइंग्स अदर देन ह्यूमंस, हमने उनको लोअर बोल के अपने आप को बहुत अहंकार में जी रहे हैं, हम तुम सबसे अच्छे. क्या अच्छे? बॉन्डेज में तो हम हैं, वो तो मस्त हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर लिविंग बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग? इफ यू अंडरस्टैंड दिस, इट विल क्लियर a lot of things for you. They are always at ease. Try to understand what I'm saying. The lower, not the lower again, कि वो इतना हार्ड कंसेप्ट बने हुए हैं. Other living beings are actually living at ease. Yes or no? They may be injured, they may be hungry, they may be thirsty, but they are at ease. इसका मतलब समझ रहे हैं? राइट? खाना मिल गया, एक सेफ जगह ढूंढेंगे, जाकर सो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है उनको. वो नहीं बोलते आई एम फेलियर, आई एम रिजेक्टेड, आई एम स्मॉल, आई एम वीक, नोबडी लव्स मी. उनका ये ड्रामा नहीं चलता है. राइट? So from that standpoint of view, tell me, what do you think other living beings are doing and what human being is doing? Why are we in bondage and they are not? And why do we need moksha, they don't need moksha? Any answers? बहुत serious topic छेड़ लिया गया. because they have not उनके पास हमारे जैसा दिमाग नहीं है. उनके लिए खाना पीना, तो ये अच्छा है या बुरा है? लाइफ है. ये अच्छा है या बुरा है? ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखे तो अच्छा है. क्योंकि अगर हमने, फ्रीडम के पर्सपेक्टिव हमको से दिमाग देखें मिला तो है, बुरा उसके है. कारण हमने अपनी जिंदगी बदतर बना ली है, उनसे भी बदतर बना ली है कि नहीं? क्योंकि हम तो अपना दिमाग ओवर यूज कर रहे हैं. ओके, यस यस परिणा. ओके फाइन, प्रभुदेव जी औरों से भी सुन लेते हैं. यस परिणा. Shashi ji, what I have a little bit of understanding on this is that probably we as human beings have the highest level of consciousness, which means somewhere we have the power to influence others' lives also. But how do we use that power influencing ourselves and other lives? Probably that determines कि क्या आपने कर्म कमाए हैं and you know what direction you are moving. I mean, I don't know. That is what Okay. I feel. Okay, that's good. That's your level of understanding. Okay, fine, accepted. Great. So let's acknowledge Prabhyot ji and Parina ji. Yeah. Okay, good. Anybody else? Anybody else? I want everybody to share at least what are your thoughts about it. क्या ह्यूमन बीइंग बाकी लिविंग बीइंग से बेहतर हैं? और अगर बेहतर हैं तो हमारी जिंदगी इतनी बदतर क्यों है? 99% of the people are in suffering and misery, and you needed an avatar like Buddha to find out the reason for freedom from suffering, right? And the animals don't suffer. By the way, they can be injured, they can be hungry, they can be thirsty, but they don't suffer. They are not in misery. Yes, yes, Parina ji, you want to say, share something? शशि जी, हम माया जाल में फंस जाते हैं. तो माया जाल में तो वो भी हैं, माया में तो वो भी हैं, पर वो जाल में नहीं फंसते. माया में तो वो भी हैं. They are in the outside world. Outside world is an illusion, हाँ जी. an appearance.
So we can also True. have that intelligence. We are the highest level of consciousness, right? So we should be able to come out of this Maya very fast. In fact, we are worse. We get more entangled into it. तो माया जाल में हम फंसे, वो सिर्फ माया में, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, हमको बहुत फर्क पड़ता है. क्यों? Yes, Prabhu ji. because sir, we need money for everything. They don't need money. उन्होंने प्रकृति से, नेचर से अपना घर बना लिया. They don't need money to take food, take But- mobile, and But the prehistoric man used to do Any that and they were facilities. happy, right? So we are going from bad to worse. yes, Earlier we were good and now we have become worse, right? Is that what you're trying to say? yes sir. Okay. I will not agree with it. I will not disagree with it. I'm just observing your views. Yeah. Okay. Anybody else? नीरू जी, yeah. आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप म्यूट पे हैं. आप म्यूट पे हैं. नीरू जी, आप म्यूट पे हैं. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा पहले. है हम्म. बिकॉज हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं क्यों? ड्यू टू कि इतना प्यारा वर्ल्ड है, इसी के अंदर बस आप आपस में इसके साथ उसके साथ रिलेशन बना रहे हैं, नेचर से रिलेशन दूर हो रहा है हमारा. Okay, you are I close, think but so. you are on the periphery. You have to go to the core. Okay, so I will take you to the core. Anybody else? Amit ji, your views? क्या बोलना चाहेंगे? Audible. Yeah, I think whatever you're saying holds true only in the current context of the quadrant of the yuga that we are in, but it is not a universal truth. So universal truth, we all know that in terms of the level of consciousness, we are highest. We've got a state spine. We can expand our consciousness, which is unlike any other animal. ये बात सही है कि currently in Kalyug, it is the different situation. There are times when humans are more in misery and suffering. We see whatever the world is experiencing today. हाँ, but currently कह सकते हैं, but ये universally correct नहीं है बात. Yeah, this is not a universal principle which should apply in all beyond time and space. You know? Okay, okay. So, बाकी over to you. सर Right. मेरा हाँ एक जी. क्वेश्चन है. अनिरुद्ध जी, हाँ बोलिए. टुडे बोलिए. Today क्या? अभी आप बात हाँ जी अभी बात आप यह चल रही है कि एनिमल्स जो है हम मोह माया के चक्कर में है, एनिमल्स को मोह माया का चक्कर नहीं है. तो ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि उनको चक्कर नहीं है? इसका कोई क्या इसके पीछे क्या है? कैसे इसको प्रूव कैसे करेंगे उनको मोह माया का चक्कर नहीं है? Okay, good question. So that is the right inquiry. We will get into that. Vijay ji, anything from your side? Good evening, everybody. Thank you, Shashidhar ji. In fact, I am listening and it's quite interesting to hear out people. But basically, I also agree that humans have this advantage of consciousness. And while I might disagree with few views, like मुझे कलयुग, सतयुग और अलग-अलग युग का concept समझ में नहीं आता. It's broadly for the entire world. But you can be in Kalyug or you can be in Satyug based on where your mind is at the moment. Absolutely. So in my view, what's more important would be perhaps acceptance and gratitude. I keep coming on that. व्यक्ति वस्ती और परिस्थिति जो है, जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो माया है, अगर आपको उसकी तरफ एक्सेप्टेंस है, and then you have gratitude for what you already have, I think you are in good space. Okay, got it. Let's acknowledge everybody who shared. Am I audible? Yeah. You're clear, audible, and good. So let's acknowledge everybody who shared. Yes. And so now we will get into the basic question of what Anirudh ji said. How do we know? How do we know? Correct. So we have to start with some level of wisdom or some level of understanding. So let us understand it this way. All other living beings, except human beings, okay, they are following you can say the law of nature. They evolved as per the natural laws. प्रकृति के नियम हैं, उनके अनुसार ही उनका सारा पालन पोषण होता है.
correct? So whether it is we are talking of sidereal kingdom, when we talk of sidereal kingdom, we are talking of the whole Brahman, pura universe, physical universe जो create हुआ, yes, and we call that the kingdom of light, क्योंकि we can say when we talk of our solar system, the foundation is sun. So similarly, पूरे universe का भी जो है that is light. So light के basis पे this whole sidereal kingdom is made. And in this, the whole Brahmand में जो है mineral kingdom है, we know that mineral kingdom is made up of rocks, mountains, yes. So mineral kingdom हो गया जिसमें soil आता है, उसके बाद plant kingdom है, then animal kingdom है, then human kingdom है, and then beyond the human kingdom is the celestial kingdom. So those who are interested in knowing if you qualify after this human birth, where do you go? You go to the celestial kingdom, where the celestial masters in the astral body are waiting. They guide you also. That is a separate story. So we will come to that later. Right now we are talking of the animal kingdom, correct? Animal kingdom में आप देखते हैं, how do they behave? They behave by instinct. They behave by instinct, and all the species in general have common behavior by instinct. Like birds fly, chirp and fly. Fishes swim. Clear है? And cat को भी देखेंगे. Cat all over the planet will have the basic nature same. Now they can be white, they can be brown, whatever, but their basic intrinsic nature of the cats remain the same. Of all the cows on the planet Earth remain the same, because they as a species are following the basic intrinsic nature. काऊ का क्या है? घास खाती है, दूध देती है. Everywhere it is the same. Correct? So all animals are following the natural laws of evolution, and most important thing, they have no thoughts. They have no thoughts of I-ness. उनमें ego नहीं आता. क्यों? क्योंकि they are not thinking of I. They are thinking of the basic species का nature, and they behave accordingly. They don't interfere with the divine intelligence or the universal intelligence. So the divine intelligence will run through them and evolve them as per the place of evolution where they are. So mineral kingdom evolves into plant kingdom, evolves into animal kingdom, evolves into human kingdom. Making sense? Everybody okay with this till now? Right? Okay, let's move further then. तो एनिमल्स में आइनस का थॉट नहीं होता, इसलिए ईगो ट्रिगर नहीं होता. और ईगो ट्रिगर नहीं होने का मतलब क्या है? कर्तापन नहीं होता. देयर इज नो कर्तापन इन द एनिमल्स. सर होल्ड ऑन, पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, बाद में डिस्कशन करेंगे. होल्ड ऑन अनिरुद्ध जी, होल्ड ऑन. राइट, नाउ वी कम टू ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स में क्या है? वी हैव द पावर ऑफ थिंकिंग, बिकॉज वी आर हाईली कॉन्शियस. So we have a mind, developed mind, we can think. And because of this thinking, ego is formed and कर्तापन is there. है कि नहीं? हम सब में कुछ न कुछ अलग है जो करना चाहते हैं. तो आइनस है. आइनस की वजह से आई, मी, माई सेल्फ ट्रिगर होता है और ईगो फॉर्म होता है. Now there is one Amitabh Bachchan who has acted in more than 100 films, Golden Jubilee movies. There is one Sachin Tendulkar who has scored 100. So there is an individuality in every human being, and he is excelling depending on his skills and his strengths and whatever. So there is an I-ness and there is a kartapan, which is actually good for human beings because they have an individuality, but also this interferes with the divine intelligence of evolution. That is why in this world of illusion, that is Maya, we are stuck with tamasic संस्कार और राजसिक संस्कार और सात्विक संस्कार. इनके मुताबिक हमारी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती है. जो बहुत तमस में हैं उनकी स्पिरिचुअल जर्नी रिटार्ड होती है. जो राजसिक में है वो बॉन्डेज में फंस जाते हैं, अटैचमेंट में, राग द्वेष, राइट. और जो सात्विक में हैं वो बॉन्डेज से थोड़ा फ्री होके आगे ऊपर बढ़ते हैं. सो दिस इज व्हाट अमित जी वाज सेइंग व्हेन वी टॉक्ड ऑफ ए स्ट्रेट स्पाइन एंड राइजिंग अप इन कॉन्शियसनेस, पॉसिबल ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स. All the other animals are, their spine is horizontal, so they cannot rise in their consciousness. They are hardwired into their root chakra. So they exist or they live without a raising of consciousness. Right? In human beings, we can move from root chakra and we can move ahead to
maybe third eye chakra, Agya chakra, or maybe Sahasrara chakra. That is the status of the self-realized souls we are talking of. Correct? Now, because of this ego and because of the intervention with the divine intelligence, some people are falling back into tamas, some are stuck in rajas, and some are moving forward in sattva. That is why individual karmas are important and collective karmas are important for your spiritual journey. That is why human beings in tamas and rajas suffer, and they are undergoing suffering and misery in life. Okay, whereas people who are moving towards sattva are experiencing freedom from suffering and misery and are moving forward in the spiritual journey and also guiding other people how to attain higher consciousness. So this is the basic difference between why human being is caught in the Mohamaya Jal and animals are living their natural way of being and evolving as per their natural laws of evolution. So am I clear now? Or if you have any questions, please raise your hand and ask. Yes, Anirudh, now I will take your question. Yeah. सर आपने कहा कि एनिमल्स में, प्लांट्स में या बाकी जगह ईगो नहीं होती, परंतु होता क्या है कि एनिमल्स भी आपस में फाइट करते हैं, तो वो शायद ईगो के कारण ही करते होंगे। ईगो के कारण, प्लांट्स में एक गमले में वो सर्वाइवल के लिए करते हैं, वो अपने वो खाने ईगो के हो लिए गया ना करते हैं, सर। वो खाने के लिए सर्वाइवल का जो खाना जो है वो भी ईगो में आता है ना जी। होल्ड ऑन अनिल जी, सर्वाइव वो अपने ईगो के लिए नहीं करते, वो किस लिए करते हैं? अपनी सर्वाइवल के लिए। लाइक प्लांट्स जो हैं, मिनरल किंगडम एंड प्लांट किंगडम विल सरेंडर टू द एनिमल किंगडम, lower forms always surrender to the higher forms. This is the natural law of evolution. So mineral kingdom, plant kingdom, animal kingdom will surrender to the human kingdom. तो हम वेजिटेरियन हैं, हम खाते हैं, या नॉन वेज हैं तो हम एनिमल्स को खाते हैं, तो they are food for us, we survive on them. But because of the higher consciousness, we are also supposed to be taking care of them, which we have forgotten. And that is why the whole nature is ecological balance पूरा बिगड़ गया है, and we can experience that in life, right? But then basic understanding is lower forms surrender to the higher forms. तो वो लड़ नहीं रहे हैं, वो उनके जीने का एक तरीका है, ईगो नहीं है, वो उनका इंस्टिंक्ट है। अब शेर को देख के हिरण भाग रहा है और वो उसका शिकार करने भाग रहा है, और हमको लगेगा हिरण बेचारा मर गया या शेर क्रूअल है, ये नेचर है। कभी हिरण बच जाएगा, शेर भूखा मर जाएगा, और कभी शेर खा जाएगा हिरण को तो हिरण मर जाएगा। बट ये परफेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है, ये नेचुरल लॉ है, ये नेचर का लॉ है, और इसी से इवोल्यूशन चलता है, और वो परफेक्ट बैलेंस में है। अगर इंसान अपनी टांग ना अड़ाए तो सब कुछ बहुत अच्छा बैलेंस में चल रहा है, लेकिन हमको अपनी टांग अड़ानी है, अपना दिमाग लगाना है, और हमने प्रकृति का बेड़ागर कर दिया। यस और नो? तभी ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, हमको पता ही है हम कर क्या रहे हैं। तो हमारा बैलेंस जो है वो पूरे नेचर के बैलेंस को बिगाड़ रहा है, और ये इसलिए है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में ईगो है और किसी में ईगो नहीं। दे आर फॉलोइंग द नेचुरल लॉ ऑफ इवोल्यूशन। यस अनिरुद्ध जी, अंडरस्टैंड दिस एंड देन मूव। यस सर, मेरा दो क्वेश्चन है, फिर वो मैं उसका आंसर नहीं चाहिए। पहला है कि मैंने जैसे गमले में 2 पौधे लगाता हूँ, वो साथ साथ एक पौधा तो बड़ा हो जाता है, दूसरे को वो आगे बढ़ने से रोकता है। अब ये क्या है? नंबर 1। सेकंड इज, जैसे डायमंड है, गोल्ड है, उनका जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि कोई केमिकल उन पर रिएक्ट नहीं कर सकता, परंतु जो आयरन है बेचारा और या कॉपर है, उस पर हर कोई केमिकल रिएक्ट कर जाता है। मैं उसको बेचारा कहूंगा। तो ये बस दिस इज माय क्वेरीज इन माय माइंड। जो मैं वो आप This is a fact. So what? ये है तो क्या हुआ? शेर हिरण को खाता है और हिरण पेड़ पौधों को खाता है, ये फैक्ट है। इससे प्रॉब्लम क्या है? इसलिए कह रहा हूँ कि उनमें भी थोड़ी बहुत ईगो है। ईगो नहीं है सर, इंस्टिंक्ट है। आप अपने ईगो इस वर्ड को छोड़ दीजिए, वो ईगो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में होता है। यू कैन स्टडी एनी साइकोलॉजी बुक्स, यू विल अंडरस्टैंड। राइट नाउ आई विल नॉट गेट इनटू दैट टॉपिक। वी आर टॉकिंग ऑफ ह्यूमन रीबर्थ। आई जस्ट गेव यू एन एग्जांपल ऑफ other living beings and human beings just for your understanding. Let's focus on human beings, let's focus on your life, and let us see where we are. Right? Okay, thank you Anirudh ji.
जैसे नॉलेज एनर्जी, क्यूरियोसिटी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हमको टॉपिक पे रहना पड़ेगा भी, है ना। तो लेट्स फोकस ऑन आवर रिबर्थ नाउ, लेट अस लुक टू आवर लाइफ एंड आवर कर्मा। तो आप अब अपनी लाइफ को देखें, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को देखें, अपने कर्मा को देखें, तो आपको क्या लगता है आप कहाँ पे हैं? क्या आप में से कितने लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं आई एम इन माई लास्ट बार, इस बार मैं कॉन्शियसनेस को सहस्रार तक ले जाऊंगा एंड मैं सेलेस्टियल किंगडम में, जैसे मैंने अभी बताया ह्यूमन किंगडम के बाद सेलेस्टियल किंगडम का दरवाजा खुलता है, तो आई विल एंटर द सेलेस्टियल किंगडम इन दिस लाइफ टाइम। कितने लोग हैं ऐसे जो दावे के साथ डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि मेरे पूरे एफर्ट्स तैयार हैं एंड आई एम मूविंग अहेड? वही नहीं, क्या बात करें विजय जी? Sir, how is it important? It's not important, but it is a progress where you are. No, how is it important about the progress? I mean, if you, I don't understand. I mean, जैसे मोक्ष बोले या rebirth होगा या नहीं होगा, how does it really matter? Okay, so where are you right now? Look at that first. आप एक जर्नी पे हैं. I don't know. हाँ, so you should first understand that you are on a journey. And if you don't understand you are on a journey, then you should understand you are on planet Earth, which is moving at a very tremendous speed in the universe around the sun. So you are always moving. You are never static, right? So it is better to understand where our life is going. आपकी अंडरस्टैंडिंग ना, आप इंटरेस्टेड हो या ना हो अलग चीज़ है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। आप फ्लाइट में बैठे हो, आप कहीं नहीं हिल रहे, आप आराम से सो रहे हो, लेकिन फ्लाइट जा रही है दिल्ली से बॉम्बे या इंडिया से यूएस, तो आप फ्लाइट में जा रहे हैं, यू आर मूविंग। सर जब पायलट खुद नहीं है, फ्लाइट में बैठे हैं, तो जहाँ जा रहा है वहाँ चले जाने का। Yeah, but you have bought a ticket and you have boarded the plane. You should be aware of that. Yes or no? कि किसी भी प्लेन में चढ़ के बैठ जाओगे? अगर आपको यूएस जाना है तो दुबई वाली फ्लाइट में बैठ जाओगे क्या? नहीं। तो you should know where you are going so that you board the right plane and you are on the right path and you do the right actions. That is what I'm talking about. Yeah. You may not be, it may not be important for you, but you should know. Right? Okay, good. So I thought Vijay ji was very close to what I wanted. Amit ji is definitely there, I know. Yes, but the position ये नहीं है कि हम कहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। ये तो अपना एक वो है, जुनून है। जैसे विराट कोहली बोले कि मैं सचिन तेंदुलकर के 100 को तोड़ूंगा। So it's like a motivation. It is like you know, like a goal post कि मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को ये यहाँ पहुँचना है। Correct? So what are you doing in your life? That is my question. आप कहाँ पे हैं, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, और ये लाइफ टाइम जो आपको मिला है, क्या आप इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? तो उसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके लाइफ में तामसिक इंस्टिंक्ट्स ज़्यादा हैं, यानी कि आपके चित्त में तमस के संस्कार ज़्यादा हैं, तो आप लेजी हैं, आप बिल्कुल जैसे मूड बुद्धि होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा भगवान कुछ नहीं होता, खाओ पियो सो जाओ, आराम शब्द में राम छिपा है, सो जाओ, मस्त रहो। राइट? सो दिस इज ए आइडियल टॉक ऑफ ए तामसिक पर्सन। लेजी, बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करना ना, क्यों बेकार में एनर्जी वेस्ट करनी है। राइट? तो जो चल रहा है चलने दो। 150 किलो के हो गए हैं, शरीर फैलता जा रहा है, और कुछ फैले ना फैले, हिलना नहीं है, और बेड पे पड़े हुए हैं, और you know the rest of the story. Correct? तामसिक, lazy, no actions, कोई दिमाग पे जोर नहीं डालना, कोई विजडम की बात नहीं करनी, मूवी देखो, खाना पीना खाओ एंड मस्त रहो। सक्सेस मिले तो मिले, नहीं है तो नहीं है, चलेगा। एक दुकान है, दुकान पे बैठे हुए हैं, अगर वो भी हो तो, नहीं है तो वो भी चलेगा। सब कुछ, सब लेजी लेड बैक एटीट्यूड। रजस में क्या है? सारे विकार आपके जागृत होंगे। This because this will, while tamas is taking down in your spiritual journey, rajas is going to create lot of bondages for you. तो आपके जितने भी क्लेशास हैं, क्लेशास मीन्स वी टॉक ऑफ पॉइजन्स, संस्कार, उसमें शास्त्रों में उसको षड रिपु बोला गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, आलस, हट, जो भी है, तो ये सारे के सारे जो हैं भय, ये इसका विकार हैं आपके लिए, और इन विकारों में आप डूबे हुए हो। आई, मी, माई सेल्फ, मैं, मेरा, मेरी फैमिली,
मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी फैक्ट्री, मेरी इनकम, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, हाँ, सब मेरा मेरा में चल रहा है। सेल्फिशनेस, अहंकार पूरे पीक पे है। तो एक्शंस कैसे होंगे? छीना झपटी जो मर्जी करो, कोई मोरालिटी नहीं है, इमोरल काम करो, जो मर्जी करो, अनलॉफुल काम करो, रूल्स तोड़ो, मुझे चाहिए दुर्योधन, मुझे हस्तिनापुर भी चाहिए, और मुझे इंद्रप्रस्थ भी चाहिए, सुई की नोक की जमीन भी किसी को नहीं दूंगा, सब मेरा है, भाड़ में जाओ, सब मर जाओ, नहीं मरे तो मैं मार दूंगा। क्लियर है? तो आप पूरी तरह से रजोगुण में फंसे हुए हो। नाउ दिस कैन ऑल्सो मीन ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। All the pleasures means what? We are talking of 3 W's we normally talk of. So wine, women and wealth you can say. And women की जगह men कर लो, for those who are interested. Right? So we are talking of all the pleasures of life. Right? Bondages हैं, बिल्कुल bondages हैं। पूरे अटैचमेंट में फंस जाओगे, आप फ्री हो ही नहीं सकते। तो ये सब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को डोरमेंट करेंगे या नीचे को लेके जाएंगे। ये मोह माया, किसी को मोह माया गया। और ये क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर कर्तापन है, मैं ये करता हूं। अहंकार का मतलब भी यही है, अहम का आकार। आपने जो अपनी इमेज बना रखी है आई की, ईगो की जो आकार है, अगर बहुत बड़ा है तो आपका अहंकार बहुत बड़ा है, और बहुत छोटा है तो हीन भाव से आप बिल्कुल ग्रस्त हो। मैं छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, फेलियर हूँ, रिजेक्टेड हूँ, बर्बाद हूँ, देवदास हूँ। तो लाइफ भी वैसे ही है, ट्रेजेडी भी बनी हुई है लाइफ। How many of you are clear on this? So you have to understand your life, you have to see your life, introspect your life and see where you are. आपके संस्कार कौन से एक्टिव हैं और कहाँ पे आप फंसे हुए हैं। अगर आपको ये दिख गया मेरे विकार कौन से हैं, मेरा अहंकार क्या है, और अहंकार के भी बहुत सारे रूप हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, विक्टिम ईगो, विलेन ईगो, करेक्ट, देन कंप्लेनिंग ईगो। कंप्लेनिंग ईगो होते हैं, देखें आपने, हेनपेक्ड हस्बैंड और हेनपेक्ड वाइफ, हर बात पे रोना ही रहना, रोते ही रहना है। ब्लेमिंग अदर्स, कोई गिल्ट में होता है, वो गिल्ट में, पछतावे में इतना जीते हैं कि उनको गिल्ट से ही फ्रीडम नहीं मिलती। So you have to understand which ego type is dominant in your life. What are the vikars that are making you experience suffering and misery in life? Correct? और आपकी जो यहाँ से अगर फ्रीडम चाहिए तो आपको आपके सात्विक कर्म करने पड़ेंगे। सात्विक कर्म का मतलब क्या है? आपको अपनी साधना पे ध्यान देना पड़ेगा। साधना, सेवा और सत्संग, सुना है आपने? ये हैं वो 3 पिलर्स जो आपको फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि बॉन्डेजेस से बचाएंगे। साधना का मतलब क्या है? 4 योग मार्ग हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करिए। कर्म योग, दान दक्षिणा करिए, लोगों की सेवा करिए, तो कर्म योग कर रहे हैं आप। देखते हैं हम कहाँ दान दक्षिणा करते हैं काफ़ी लोग। चैरिटी, यू आर सर्विंग पीपल, गुरुद्वारा में लोग सर्व करते हैं। यस। देन भी है भक्ति योग, तीर्थ पे जा रहे हैं, ये कॉमन है, सारे लोग अपने अपने घरों में भी करते हैं, राइट। हर एक के घर में एक छोटा सा मंदिर होता है, तो आप उसमें दिया जलाते हैं, प्रेयर करते हैं, कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, अपने आराध्य की पूजा करते हैं। तो जो भी आप करते हैं, अभी शिवरात्रि का त्यौहार है, ये करना है, वो करना है, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप तीर्थ करें, भजन करें, भजन कीर्तन करें, तो ये सब आपका भक्ति योग, राइट। उसके बाद ध्यान योग, पतंजलि अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर ये आपने लिया हुआ है, प्राणायाम और योग मार्ग पे जा रहे हैं, मेडिटेशन, ध्यान और प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप ध्यान मार्ग पे हैं, ये भी एक साधना है। या फिर फाइनली आप ज्ञान मार्ग पकड़ेंगे, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, वेदांता विजडम पढ़ रहे हैं, अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं, और उनके विजडम से आप अपने चित्त को पूरा साफ कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, विजडम आ रही है, करेक्ट।
तो ये आपकी साधना है। 4 योग मार्ग हैं, कोई भी ले लीजिए या चारों ले लीजिए, जैसे मर्जी आप आगे बढ़ेंगे। तो ये आपकी साधना है। अगर अभी तक नहीं किया तो इस जन्म में ये शुरू करिए, क्योंकि किस जन्म में फ्रीडम मिलेगी पता नहीं, लेकिन हर जन्म के जो भी आपके एफर्ट्स हैं साधना में, ये क्यूमुलेटिव आपको आगे काम आएंगे। एक यही है जो आपके साथ आपके संस्कार बन के आगे बढ़ेंगे, राइट। क्योंकि फिजिकल जो भी आप वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे, चाहे वो धन हो, फिर नाम हो, नेम फेम रेपुटेशन वेल्थ, जो कुछ भी है वो सब यहीं रह जाएगा। तो ना, क्या लेके आए क्या लेके जाओगे, तो ये फिजिकल वेल्थ के लिए बोला गया है। आप क्या लेके आते हो, अपने कर्म और संस्कार लेके आते हो, और पूरे जिंदगी में इस जन्म में जो कुछ आपने कर्म किए, नए कर्म और नए संस्कार लेके जाते हो अगले जन्म में। तो आपके चित्त में अगर कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, वो आपकी साधना से ही होगा, आपकी सेवा से होगा और आपके सत्संग से होगा। तो ये आपको अपने संस्कार में लाना है, ताकि कहीं ना कहीं आगे बढ़ के आप सही डेस्टिनेशन पे सही फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाए। क्लियर। तो अपनी साधना पे ध्यान देना है। आपकी पीस एंड फुलफिलमेंट का लेवल क्या है देखिए। और अगर आप अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह किसी भी एक चीज से बुरी तरह से फंसे हुए हैं, वहां से बाहर निकलने के लिए तरीका ढूंढिए कि उसकी जो गिरफ्त है वो कमजोर हो जाए और धीरे धीरे आप उससे फ्रीडम पाना शुरू करें। उसके लिए आपको साधना करनी है। मेकिंग सेंस? So this is how you will actually move forward on the path of freedom. And why this is required? This can be done only by human beings, so you better do it. और किसी योनि में आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन और कहीं नहीं हो सकता, which Amit ji said right in the beginning. क्योंकि हमारा स्पाइन स्ट्रेट है, we can move our consciousness from मूलाधार to सहस्रार. That is the importance of the human life. तो इसको वेस्ट नहीं करना है, अपने कर्मों पे ध्यान देना है, तमस और रजस से बच के सत्व में आके स्थित होना है, उसी को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, और ये आपकी साधना से होगा। यस, तो मैंने बहुत ज्ञान दे दिया। लेट्स हैव सम पीपल शेयर नाउ व्हाट यू आर टेकिंग आउट फ्रॉम द सेशन। यस अमित जी, यू वांटेड टू से समथिंग गुड? अमित जी म्यूट पे हैं आप। अमित जी म्यूट पे हैं, अनम्यूट करिए। Yeah, sorry. So about 10 minutes back, are we audible? Yeah. Now? Yeah. Hello? Not audible? Yeah. Yeah. So हम लोग 2 बातें कर रहे थे about कि किस तरह से लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, they're happy in whatever life that they are in. तो वहाँ पे एक बात समझ में आती है कि whatever that we're doing, I mean वो एक तरीका है जीने का, सोचने का, and also which will answer the entire thing about rebirth or not. The best way to live life is to explore the highest potential that we can have. So it's about the potential. It is okay to live the way people want to live. Some people in terms say not okay, but then instead of people who are maybe in Ratsik or maybe a Sattvic zone, and people who are doing whatever for their society, it's important also for them to understand कि इस तरह के भी situations होंगी life में, where people may be not experiencing the highest potential, and they may continue to think like that. But that is a myth, and that is not living to the best what humans can do. So whatever karma state hona is just a gift that we have got from the entire cycle of. But I think इसके बाद उसको use कर पाना और उसको फैलाना फिर समाज में कि these are the amazing gifts of consciousness that only humans have, which nobody else has. It is also okay to not to find a journey. I think somebody was talking about कि जाना कहाँ है और क्यों जाना है. I think कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल सही बात है, वर्तमान में absolutely being in the moment. पर ये ज्ञान तो हमको मिल गया, अब इसको अगर हम as much as replicable तरीके से नहीं फैलाएंगे समाज में, तो highest potential वाली बात नहीं है, बस बाकी सब ठीक है. और next last point, जितनी भी theories हैं कि ego में होती है या नहीं होती है, is rebirth the right thing, are the other animals in the bondage or not? There are billions of thought processes, belief systems which will continue to exist. I think the supreme most way to live life would be to be in the moment absolutely, and let all these theories come and go. But being in the moment,
and it opens up a new chapter of understanding that how to be in the moment and what is the advantage. But I think largely ये theories contrasting मिलते रहेंगे हमें marketplace पे. But I think these 2 points, that highest potential तभी है जब हम इस चीज की और replicable तरीके से समाज में फैलाएं, जिसको हम बोलते हैं consciousness based social work. And the other is to live in the moment instead of getting into what is Kali Yuga Satyug. In fact, somebody also talked about Kali Yuga Satyug. So even if it is a theoretical concept, let's decline that it even exists, this entire understanding. But we all know that Earth is experiencing the lowest, most vibrational zone recorded in the mankind history ever. अब इसको हम कुछ भी बोल लें, इससे ज्यादा बुरी स्थिति अर्थ की नहीं हुई है. 195 countries, we see about 20 countries fighting in the world today. Human conflict घर घर में घुस गया है. Planet पे irreversible changes हो चुके हैं. अब इसको हम कलयुग नहीं तो हम एक डांस शो का भी नाम दे सकते हैं, but इतनी बुरी स्थिति planet की नहीं थी. Okay. Thank you, Amit ji. Thank you for your views. Let's acknowledge Amit ji. That's a very complete summarization of what all we discussed. So just a couple of points to highlight what Amit ji said. Number one, सोसाइटी या प्लैनेट में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किस लेवल पे है, दैट विल इम्पैक्ट यू एंड यू विल आल्सो इम्पैक्ट दैट. The best way to impact that is to raise your consciousness to such level that you can impact them rather than the collective consciousness of lower consciousness impacting you. And when we talk of Kali Yuga, I am talking of basically the tamasic qualities. When we talk of Satyug, we are talking of the sattva qualities. तो आप तो कहीं पे जो मर्जी हो, टाइम जो मर्जी हो, आप अपने कॉन्शियसनेस को कलयुग से सतयुग में ला सकते हैं अभी, because you can always move from tamas to sattva. Focus on that and then influence people. That is what Amit ji said. You spread करेंगे तो obviously the light of satyug will or the sattva will spread to the humanity, and we will be contributing to humanity by raising the consciousness of the planet Earth by healing ourselves. And this whole process of self-healing is raising your consciousness from lower chakra to the higher chakra. Correct? That is what. Second, जो आपने बोला प्रेजेंट में रहना है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाना है, तो उसकी प्रॉब्लम ही थॉट है. हमारा जो थॉट है, सी व्हाट इज पास्ट इफ यू आस्क मी. आपको पेन है पास्ट में, तो आपके थॉट है, एक मेमोरी है और एक थॉट है उससे रिलेटेड विच इज टेकिंग यू टू द पास्ट. अगर उस थॉट से आपने गिव अप कर दिया, यू विल बी इन द प्रेजेंट. पेंडुलम की तरह हम पास्ट और फ्यूचर में जाते हैं, हम प्रेजेंट में टिक नहीं पाते. तो अगर उस थॉट प्रोसेस को अगर हम छोड़ देते हैं, तो वरी अबाउट द फ्यूचर विल टेक यू टू वन एक्सट्रीम एंड पेन ऑफ द पास्ट विल टेक यू टू द अदर एक्सट्रीम. तो अल्टीमेटली ये थॉट प्रोसेस ही है जो हमको ईगो में फंसा रहा है और कर्मा बॉन्डेजेस में फंसा रहा है. तो अपनी साधना से ही हम इसको स्टडी कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है. तो बीइंग इन द प्रेजेंट आसानी से कह दिया, बहुत साधना लगती है इसको, हाँ, बीइंग इन द प्रेजेंट में रहने के लिए. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर माइंड विच इज पोल्यूटेड. आपके डिजायर्स हैं, आपके वांट्स हैं, नीड्स फुलफिल हो सकते हैं, लेकिन वांट्स एंड डिजायर्स कभी भी फुलफिल नहीं होंगे. तो आपका माइंड पोल्यूटेड है, आपका माइंड रेस्टलेस है, उसको स्टडी करना है, माइंड को स्टेबल करना है, माइंड को प्योर करना है. वो साधना से ही होगा, तभी बीइंग इन द प्रेजेंट आएगा. राइट? So just building up on what Amit ji said. So focus on your sadhana. There is nothing else that can make you move forward in your spiritual journey. And that is entirely up to an individual. What kind of sadhana will suit you? जैसे मैंने बोला 4 योग मार्ग हैं, आपको जो सूट करता है वो पकड़िए, लेकिन कुछ ना कुछ पकड़िए. And like Swami Vivekananda said, take all the 4. You never know where the water will flow. तो चारों प्रैक्टिस करिए, कहीं ना कहीं से आप आगे बढ़ते रहेंगे. And that is what I have experienced in my life. So I try to follow whatever comes to me out of these 4, and it somehow I maneuvered everything in my life and I am moving forward. So that works. So practice all the 4 yoga marks, practice the sadhana, and then move forward in your journey. So that is the message. That is exactly what you will get from freedom. That is moksha. That is unattachment, and that is giving you freedom from birth and rebirth. Having said that, take a birth and come back again. ये playground है आपके लिए. This earth or this bhulok is the area where you are going to play. You will get a body, you come here and play the game so that everybody on this planet Earth can respect what you're doing, right? And you can make a contribution to yourself and to others. That is the purpose of your life, our life overall on this planet Earth.
So with this, we come to the end of the session. Last and final call. Anybody who wants to share? Let me check with people who have come here for the first time. So नीरू अरोड़ा जी, क्या लेके जा रहे हैं आज सेशन से? मैं कैसा लगा आपको एक्चुअली सेशन? योगा बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली योगा करती हूँ रोज, डेली मैं कर रही हूँ 2 साल से। और बीच में मेरी ग्रैंड डॉटर हो गई है तो थोड़ा थोड़ा अप डाउन हो जाता है, कभी नहीं हो पाता, कभी हो जाता है। लेकिन मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, हमेशा ही करती रहूंगी, क्योंकि उससे बहुत थॉट प्रोसेस जो है वो हमें मेडिटेशन भी कराते हैं एक दिन। उसमें हमें बताते हैं कि जो थॉट्स आ रहे हैं उसको आने दो, उसको रोको मत, आने दो। और यदि दोबारा से उतर जाते हो फिर अपने आप उसको फोकस में ले आओ, फिर इधर उधर होता है फिर दोबारा फोकस में ले आओ। आप उसको रोकोगे तो बार बार आएंगे। तो बहुत अच्छी तरह से गाइडेड मेडिटेशन हो रही है वहां पर। और वो और भी कई तरह के योगा कराते हैं, तो मैं तो उसमें बहुत खुश हूँ। Very good, और मेरे बहुत को बढ़िया। लाइफ और वर्ल्ड बहुत अच्छा लगता है, पूरा वर्ल्ड इतना खूबसूरत नेचर है। कभी देखो, मैं अमेरिका गई थी, वहां पर तो इतना सुंदर लगता है ना सारा कुछ, क्योंकि सब कुछ खुला खुला है, जगह ज्यादा है, हर स्काई भी इतना दिखता है। वहां मुझे ये फीलिंग हुई थी कि जैसे स्काई मुझे खुद प्यार कर रहा है। आई फील दैट, क्योंकि मैं उस दिन बड़ी सैड थी वहां पर। तो मैं जैसे सैर कर रही थी वहां पर, मैं 2-2 घंटे वहां पर सैर करती थी। जब मैं सैर करते करते वापस आ रही थी, अपनी मेरी बेटी रहती है वहां, तो मैं उसके घर वापस आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मुझे स्काई कह रहा है, व्हाई आर यू सैड, आई एम विद यू। मुझे Okay, very इतना good, very अच्छा good. लगा, बहुत अच्छा लग रहा था उस समय By the वो way, नीरू सीन जी, वो मैं स्काई अभी यहाँ तक पे भी भूली है। नहीं हूँ। वो स्काई यहाँ पे भी है इंडिया में। This sky also loves you. हाँ, अब वो चीजें मुझे यहाँ भी दिखती हैं। अब वो वहां जाने के बाद मुझे यहाँ दिखने लगी हैं वो चीजें, वहां से Good. आने के बाद। So you are the universe. You and universe are not separate. You are one with the universe. You will experience that love, peace, and joy from the Yes, universe. Spread that to all the people in your life. That is what is the purpose yes, of our life. Right? Very good, Neeru ji. Thank you very much for yes, your yes. sharing. Thank Yes. you. प्रभजोत जी, Thank क्या लेके you. जा रहे हैं आज? सर काफी के डाउट्स क्लियर हुए, चेंज हुआ लाइफ में थॉट प्रोसेस। बट सर आई हैव अ वन क्वेश्चन आउट ऑफ द टॉपिक। जैसे आपने कहा कि 84 लाख यून के बाद हमें यानी मनुष्य जीवन मिलता है। आई थिंक मैंने नहीं कहा, मैंने कहा अब मैंने नहीं सुना मिलता। है ये, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। हाँ मैंने सुना, मैंने भी ग्रंथों में पढ़ा है। बट मुझे लगता है कि 84 लाख जूनों के बाद मनुष्य यानी बंदर से यानी हुआ, यानी उसके बाद यानी हम हुए। मुझे लगता है अभी वो 84 लाख जून एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि काफी स्पीसीज तो खत्म हो चुकी हैं लाइफ में। That is not important. Right now you're in the human birth. That is more important. But sir, I have a doubt if you this thought process is right or wrong. Doesn't matter. You have crossed that. अब नर्सरी में आपने कौन से सवाल का जवाब गलत दिया था जरूरी नहीं है। आप 10th पार कर चुके, 12th पार कर चुके, ग्रेजुएशन कर चुके, आप अपनी लाइफ जी रहे हैं। It doesn't matter what answer you made, you wrongly attempted in class 10th और class 12th और nursery. It's over. आप पिछले योनियों में क्या करके आए, क्या नहीं करके आए, 84 लाख हुए कि नहीं, कि एक रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पहुंच गए हैं, इट इज ओवर। अब यहाँ से आगे क्या, दैट इज इम्पोर्टेंट। जर्नी आगे क्या है वो ज्यादा जरूरी है। पीछे की जर्नी अच्छी है, अच्छी होगी तभी यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे भी बहुत अच्छे होंगे तभी यहाँ पे आए हैं, है ना। क्योंकि 99% लोग तो सो रहे हैं। 800 करोड़ लोगों में से 99% लोग तो सो रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। 1% लोग हैं जो जाग रहे हैं और कुछ करना चाह रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, तो आप उनमें हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अब आगे क्या क्या साधना करेंगे, क्या सेवा करेंगे, क्या सत्संग करेंगे, इस पे ध्यान दीजिए। योनियों का काम हो गया। ऑलराइट, वेरी गुड प्रभु जी। यस, नाउ आवर रेगुलर पार्टिसिपेंट्स क्या लेके जा रहे हैं? हाँ जी, एक मिनट आ रहे हैं। नीरू जी कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कह रही, जैसे घर में हमारे होता है, पूजा होती है, कुछ होती है, पर मुझे वो कंसेप्ट समझ में नहीं आता।
मैं उस पूजा में इतना इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत करते हैं, भगवान के आगे हाथ भी जोड़ेंगे, पूरा वो भी करेंगे, जोत भी जलाएंगे। मैंने कहा मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कोई बात इसे कि भक्ति योग अब बोलते हैं, सिर्फ इसे मूर्ति तक ही भक्ति रह योग गए। बोलते हैं। वो भक्ति योग में है, आप ध्यान योग में, इतना ही फर्क है, अच्छा। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, कुछ मतलब लोग कर्म सब योग में कुछ होंगे, ठीक है। अगर अब अमित जी से पूछेंगे वो कहेंगे मैं तो कर्म योगी हूँ, आई अच्छा। हेल्प पीपल इन माई लाइफ। तो ये मेरे को भक्ति समझ में नहीं आती, मेरे को ध्यान ये करते हैं वैसे ध्यान वो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि माइट से कि मेरे को इन दोनों में अच्छा। कोई मजा नहीं आता। मेरे से पूछेंगे मैं चारों ही करता हूँ, मैं भक्ति योग भी करता अच्छा। हूँ, ज्ञान योग भी करता हूँ, कर्म योग भी करता हूँ, और ध्यान योग भी करता हूँ। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ उस समय, और कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है मेरा, राइट। अच्छा। तो कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं है, सोल की कॉलिंग है, जो कॉलिंग हो उसको फॉलो करो, आप आगे ही बढ़ोगे। पर मेरी ठीक ठीक। सजेशन ये है कि चारों प्रैक्टिस करिए, अच्छा। चारों प्रैक्टिस करिए। कहीं ना कहीं से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी रफ्तार पकड़ेगी कि कभी आप साइकिल में जा रहे होंगे, कभी आपको ऑटो मिल जाएगा, कभी टैक्सी मिल जाएगी, कभी ट्रेन मिल जाएगी, कभी फ्लाइट मिल जाएगी, बट यू विल नेवर बी विदाउट एनी व्हीकल टू मूव अहेड। तो चारों प्रैक्टिस करिए, कहीं ना कहीं से आगे बढ़ी जाएंगे। बहुत बढ़िया नीरू और जी। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ आप करते हो ना, तो आप करते हो ना, घर के सबसे बड़े हो, तो सब पे चला जाएगा असर, मुझे मत कहो। आप उनके साथ करिए, देखिए नहीं। फिर कहाँ जाते हैं, एक और एक 11 होते हैं। गो अहेड, ये अपने भी बात आराध्य को सही है। ढूंढिए, कृष्णा जी, राम जी, शिव जी, जिनको आराध्य मानती हैं उनको ढूंढिए और पर उनकी स्तुति करिए। मुझे लगता है इनके पीछे कोई लॉजिक होगा जरूर। यदि मुझे लॉजिक समझ में आ जाए तो मैं जरूर करूंगी। ये भक्ति लॉजिक योग है, जरूर है। बस इतना ही लॉजिक है, ये भक्ति योग है, आप ढूंढिए, ठीक है। अब अपना सवाल को ठीक। ढूंढिए, भक्ति योग आपके हार्ट चक्रा को खोल देगा बहुत बढ़िया से, इतना बता सकता हूँ मैं, बाकी आपकी अपनी जर्नी है, ठीक है जी। थैंक यू। यस यस परिणा, थैंक यू। यस परिणा, यू वांटेड टू शेयर समथिंग, गो अहेड, विल डू दैट फास्ट नाउ। शशि जी, आई वांटेड टू आस्क यू, आपने उस वक्त ये सिर्फ टॉपिक हल्का सा ब्रोच किया था कि मैं उस पार गया तो नहीं, बट आई कैन गिव यू सम आइडिया दैट हाउ थिंग्स आर एट दैट एंड। आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो दैट, क्योंकि कुछ नहीं पता है हाउ, मतलब क्यों हम ये सोचें कि रीबर्थ होना है, नहीं होना, वहां जाके क्या होना है। सो अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प फ्रॉम यू। I told you, after the human kingdom comes the celestial kingdom. So the 1% or 0.01% of the population who qualify as a self-realized soul, once they leave the body, they enter the astral world. This I have read. I have not been there. So I'm just telling you as per my understanding, which comes to me. So in the astral world, there are celestial masters who are actually guiding these people also who are on the spiritual journey. तो हर एक को एक स्पिरिचुअल गुरु का एक आप बोलते हैं छत्र छाया में मिल जाती है ना। तो जो वो गुरु वो होंगे जिनकी आप यहाँ पे पूजा करते हैं, और वो अगर शरीर छोड़ गए हैं तो एस्ट्रल वर्ल्ड से आपको अपनी ब्लेसिंग्स भेजेंगे, लाइक दैट। So I look at it from that point of view, like all the you can say saints and all the celestial masters or the great spiritual masters, like we can talk of Paramhams, then Yoganand, then युक्तेश्वर गिरी बाबा जी, जो भी आपने पढ़ी होंगे जिनके गुरु हैं, और जितने अभी गुरु हैं जो शरीर छोड़ चुके हैं, ये सब एस्ट्रल वर्ल्ड में है, एस्ट्रल वर्ल्ड में ये हैं, और उनकी ब्लेसिंग से आपको यहाँ पे जर्नी में आपको मूवमेंट मिलती है। एंड वंस यू क्वालिफाई यू विल आल्सो गो टू द सेलेस्टियल किंगडम। सो ये जर्नी फ्रॉम द ह्यूमन किंगडम टू द सेलेस्टियल किंगडम इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। वहां पे क्या होता है नोबडी नोस, वो सारे हाइपोथेसिस हैं, बट योर एफर्ट्स in this lifetime can move you from the human kingdom to the celestial kingdom. That is important. That you should. Got it. Thank you, Shashi ji. All Thank right, you. very good. Just Amit ji, you wanted to share something? Last and final call. या आश्वस्त में बात करना चाहते हैं कि देर आर, हम 4 अलग अलग योगास की बात करते हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग एंड भक्ति योग। तो मैं एग्जांपल दूं कि गाड़ी के 4 पहिए हैं, दीज आर 4 व्हील्स ऑफ अ व्हीकल, और इसमें सब में अगर टायर में हवा, अगर इनके टायर में हवा अच्छी रहेगी तो बहुत अच्छी चलेगी गाड़ी, वरना 3 पहिए में भी चली जाएगी, 2 पे भी और 1 पे भी चली जाएगी परेशानी से। सब में बराबर प्रेशर हो, सब पे थोड़ा थोड़ा हो, भक्ति, ज्ञान, ध्यान और कर्म, तो वेरी गुड है। वरना एक से भी कहानी बन सकती है। भक्ति योग में जैसे मीरा ने किया, रूमी ने किया, एंड सो और से कहने हार्ट चक्रा आपका दिख रहा है, आपको नेचर इज लविंग यू, सो इट इज अ वेरी गुड सिग्नल दैट यू गॉट फ्लेम ऑफ लव डेवलपिंग इन यू। तो बहुत बढ़िया, नाइस, Absolutely perfect, very good, बहुत बढ़िया। Let's acknowledge everybody who shared, and just a final touch. I'll just give you a small final touch.
by saying that अक्सर बोलते हैं कि जब भव सागर से जैसे कोई सागर पार कर रहे हो तो you need a good ship which can take you from one side to the other side, right? But once the river is crossed, you don't carry the boat or the ship on your head for the rest of your life, है ना? तो ये जो 4 योग मार्ग भी हैं, ये एक्चुअली में जो अंडरस्टैंडिंग आई है ये कि दे आर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू मूव अहेड इन योर साधना। पर एक बार आप सिद्ध हो जाएंगे तो इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यू विल डू इट बिकॉज यू लव टू डू इट। देयर इज नो कंपल्शन ऑफ डूइंग इट, बट एज ए साधना, एज ए साधक यू आर सपोज टू फॉलो दैट डिसिप्लिन। तो साधक को डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। जब सिद्ध हो जाओगे तो आपकी चॉइस है, तब आप फुल ब्लिस में रहोगे, तो करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट स्टिल पीपल डू इट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू। ये तो और कुछ करने लायक है ही नहीं, तो यही करें हम। तो यदि हम ये 4 करते हैं उसके बाद हम यहाँ तक जिंदा भी रहेंगे या वहाँ पहुंच जाएंगे हम एकदम? जब तक आप पार नहीं करेंगे तब तक तो जिंदा ही रहेंगे आप, लाइफ में होंगे ही होंगे। क्योंकि हमें जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। इतना सुंदर भगवान ने वर्ड दिया है, नेचर इतना सुंदर है। जहाँ जितनी देर खेलना है खेलिए, आपको तो मिला हुआ है। इट्स लाइक सचिन तेंदुलकर, यू कैन से आई विल हिट 100 हंड्रेड्स, आई विल हिट 200 हंड्रेड्स, जितने मर्जी 100 मारिए यहाँ पे बैठ के। अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो कोई टीम से नहीं निकालेगा ना आपको बुलाते रहेंगे। ये भी बात सही है। थैंक यू। सतगुरु बन के आइए, शिवानी जी बन के आइए, रविशंकर जी बन के आइए, जो मर्जी बन के आइए, आपको खेलने का पूरा मौका मिलेगा। जब आप खेलेंगे बहुत खेल लिया तब आप कोच बन के जाएंगे, तो कोच होंगे वो सेलेस्टियल किंगडम में बनेंगे आप। प्लेयर बन के यहाँ पे रहना है तो यहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। All right, so great discussion. Thank you. Thank you everyone for your participation. Enjoy great life. क्या समित जी कुछ और? हाँ जी। Maybe you may want to wish happy Holi to all of them. Colorful Oh yes. Holi, blessing for everyone. Yes. Really happy Holi to all of you. Enjoy with your family and friends. Have a Happy great Holi, week. everyone. And we meet again the next Wednesday with lots more action and lot more wisdom. Thank you very much. Aham Brahmasmi. Thank you. Good night. Thank you, Shashi ji. Thank Good you. night. Bye-bye. Good night.